خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر دمیانوس صادق ہے اور میرا تعلق ریما اسمبلیز سے ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں خدا کے زندہ کلام کو لے کر آیا ہوں، اور آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے گناہ کے خطرناک نتائج۔ تو آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر دیکھیے پولس رسول کا رومیوں کے نام خط، اور اس کا 3 باب ہے، اور 3 باب کی 23ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ دعا کریں گے۔ مہربان خدا، قادر مطلق خدا، میرا توکل اور میرا بھروسہ تجھ پر ہے، اور خداوند آج کے کلام کے پیش کیے جانے کے لیے میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں۔ روح القدس خداوند رہنمائی کے لیے تو آگے آ اور ہدایت کر، اور کلام اور ترتیب بلندیوں سے عطا کر، اور خدا سننے والوں کو بڑا فضل دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آج کے عنوان کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ گناہ کے خطرناک نتائج، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے اور ہماری دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، پھیل چکا ہے، اور لوگ گناہ کرتے ہوئے بالکل نہ تو گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، اور نہ اس کے آئندہ کے انجام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حالانکہ بائبل مقدس اور دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اس کے بہت ہی برے نتائج برآمد ہوئے، اور جیسا کہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آدم اور حوا نے صرف ایک ہی گناہ کیا تھا، اور پھر اس ایک ہی گناہ کی وجہ سے آج تک ہم جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے، کہ کیسے دنیا کی حالت جو ہے وہ ابتر ہو گئی ہے، اور دنیا جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گئی ہے، اور آج پریشانی کا عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ اس کی وجہ گناہ ہی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ باغ عدن میں صرف ایک گناہ ہوا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی تو گناہ تھا، چھوٹا سا گناہ تھا، خدا معاف کر دیتا، خدا عدالت نہ کرتا، خدا ان کو باغ عدن سے نہ نکالتا۔ یہ سب جو سوالات ہیں یہ بے معنی ہیں،
گناہ کی عدالت ہونا بہت ضروری تھی، کیونکہ وہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں تھا۔ اس لیے ضرور تھا کہ خدا عدالت کرتا۔ اگر خدا اس کا انتظام نہ کرتا اور اس کا علاج نہ کرتا تو ہم سب گناہ میں مرتے۔ گناہ کا علاج کیا جانا بہت ضروری تھا، اور خدا یہ سب کچھ اپنی پاکیزگی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا تو خدا نے اس کا علاج کیا، اور خدا نے اس کا اس وجہ سے علاج بھی کیا کہ ہم سب بچ جائیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ کی جب عدالت ہوتی ہے تو پھر عدالت میں سزا سنائی جاتی ہے۔ اور گناہ جو ہے وہ خدا کے جلال سے محرومی ہے، جیسا کہ ہم نے اس آیت میں بھی پڑھا کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ محروم کیوں ہیں؟ محروم اس وجہ سے ہیں کہ خدا نہایت پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ ہمارے ساتھ ایسی صورت میں سکونت نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس نے ہمیں باغ عدن سے نکال دیا، اور یہ ہماری محرومی تھی، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزو، میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو اب بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے، دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہر روز انسان جو ہے وہ لاکھوں جھوٹ بولتا ہے، اور پھر جھوٹ بول کر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو عقل مند بھی گردانتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت چالاک ہوں، اور میں نے فلاں شخص کو بے وقوف بنایا ہے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا، بلکہ وہ خود بے وقوف ہے، اور اس نے جان بوجھ کر اس انجام پر بھی غور نہیں کیا جو اس کا آنے والا ہے، اور اس کا انجام جو ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ حالانکہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا گناہ ہے، دغا کرنا گناہ ہے، جھوٹے الزامات لگانا گناہ ہے، کرپشن کرنا گناہ ہے۔ اور میرے عزیزو، لوگ یہ کام کرتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے، لیکن پتہ اس دن چلے گا جب عدالت ہوگی، اور عدالت ضرور ہوگی۔ یاد رکھیں، خدا کی پاکیزگی اور اس کی الہی صفات میں سے ایک اس کی جو صفت ہے وہ پاکیزگی ہے۔
पाकीज़ खुदा के बातनी किरदार और उसकी असल को पेश करती है। उसकी पाकीज़गी सादा और कामिल है। और मेरे अजीज़ों, चूँकि खुदा जो है वो मुकम्मल पाक है, जिस सबब से वो मखलूक में पाकीज़गी देखना चाहता है और उसमें गुनाह नहीं देखना चाहता, वो कहीं भी गुनाह देखना नहीं चाहता। खुदा गुनाह से मुकम्मल तौर पर नफ़रत करता है और उसको कभी दरगुजर भी नहीं करता। और खुदा की रास्तबाजी इस बात का तकाजा करती है कि गुनाह को सामने लाया जाए और उसकी अदालत हो और सज़ा दी जाए, जैसा कि रोमियो पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में रास्तबाजी के ताल्लुक से लिखा हुआ है। अभी मैं बात करूंगा ग़ज़्ब-ए इलाही के बारे में। ग़ज़्ब-ए इलाही उस वक्त उमड़ आता है जब गुनाह का इलाज ना किया जाए, जब मुसलसल खुदा से बगावत और मुखालफत की जाए और आखिरकार खुदा जो है वो अदालत करने के लिए तैयार हो जाता है। ग़ज़्ब-ए इलाही खुदा का कहर है और खुदा की अदालत है, क्योंकि इंसानों ने गुनाह किए। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब खुदा की पाकीज़गी इंसान की गुनहगार हालत के साथ तज़ाद खाती है तो ग़ज़्ब-ए इलाही का इजहार होता है। इंसान के गुनाह के खिलाफ खुदा की पाकीज़गी का रद्द अमल ग़ज़ब है। गुनाह खुदा की पाकीज़गी और उसकी इज़्ज़त पर हमला करना है। अगर उसकी अदालत ना हो तो खुदा की रास्तबाजी, पाकीज़गी और अदल बेकीमत हो जाते हैं। इसलिए अदालत का होना ज़रूरी है। और इब्रानियों के ख़त में लिखा है, और आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत। इसलिए मेरे अजीज़ों, गुनाह की अदालत ज़रूर होगी और अदालत भी गुनाहगारों की होगी, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और तौबा कर ली है, उनकी अदालत नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा के इलाजे गुनाह की इंतज़ाम में शामिल हो गए, उसको कबूल कर लिया। लेकिन आज भी बहुत से लोग खुदा के इलाजे गुनाह के इंतज़ाम को रद्द करते हैं। इसलिए खुदा भी क्या करेगा? खुदा उनको रद्द कर देगा। इसलिए रोमियो के खत और उसके 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया है। और ये बात हमें बताती है कि जो खुदा के इलाजे गुनाह के इंतज़ाम में शामिल हुए, यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु मसीह के कफ़ारे की बदौलत अब उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है और उनकी अदालत भी नहीं होगी। उनको
अजर दिए जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, गुनाह और गुनाहगार की अदालत होना लाजमी है। इसलिए जितने भी आज फजल टीवी के वसीले से मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, वो इस बात पर गौर करें। हमारे मुआशरे में लोग जो हैं वो हर रोज़ बहुत से गुनाह करते हैं, लेकिन उनको कोई डर ही नहीं, उनको कोई खौफ ही नहीं। याद रखें, आसमान पर एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो जिंदा है और वो आपको देख रही है। कभी भी ये गुमान ना करें कि कोई आपको नहीं देख रहा। जो कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं वो भी ये गुमान ना करें कि हम ही जोरावर हैं और हमें कोई देख नहीं रहा, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए, आपकी भी अदालत होगी और खुदा आपको अदालत में लाएगा, क्योंकि वो आपसे जोरावर है। और मेरे अजीज़ों, मुकाशफा की किताब बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब है और ये अदालत की किताब है। छठे बाब से आखिर तक अदालत ही अदालत है। और पहले 7 मोहरें खोली जाएंगी, इसके बाद 7 नरसिंगे फूंके जाएंगे और फिर खुदा जो है वो सख्त अदालत करते हुए 7 आफतें जो हैं वो गुनाहगार दुनिया पर अंडेलेगा। और वो सख्त आफतें जो हैं वो बहुत ही कड़ी होंगी, बहुत ही सख्त होंगी और इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगी, क्योंकि इंसान ने खुदा के इंतज़ार का फ़ायदा ना उठाया, बल्कि वो उसे रद्द करते रहे। खुदा ने इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आखिरी अदालत जो है वो ज़रूर होगी। आएँ मेरे साथ मिलकर देखें मुकाशफा की किताब और उसका 20 बाब है, जहाँ पर खुदा की अदालत का ज़िक्र है और हम देखेंगे कि ये कैसी बड़ी अदालत है। मुकाशफा 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखे हैं कि ये गुनाह का इंजाम है, ये गुनाह के ख़तरनाक नताइज हैं। और हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। और ये खुदा की अदालत है।
और ये गुनाह की वजह से है जिन के बारे में आज की दुनिया बिल्कुल लापरवाह है। नूह के ज़माने की तरह, इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही से आगाह किया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के वक्त में होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। मत्ती 24 बाब और उसकी 37वें से 39वीं आयत। मेरे अजीजों, नूह के ज़माने में भी इसी तरह गुनाह बहुत बढ़ चुका था, और नूह 120 साल मुनादी करता रहा और वार्निंग देता रहा, और नूह ने उनको कहा कि खुदा दुनिया को तबाह कर देगा, खुदा तूफान लाने वाला है। आज भी जिस तरह से बहुत से खादिम जो हैं वो मैसेज देते हैं, हमें उभारते हैं, और खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं फजल टीवी के ज़रिए से आप सबको इस बारे में आगाह करूं, वार्निंग दूं, क्योंकि ये भी वही टाइम है, ये भी आखिरी वक्त है नूह के ज़माने की तरह। और यीशु मसीह ने हमें आगाह किया है। आज का आगाह करने वाला नूह नहीं, बल्कि आज का आगाह करने वाला यीशु मसीह है, और वो अपने खादिमों को भेजता है कि खिदमत करें, मुनादी करें, लोगों को जगाएं जो जागते हैं और गुनाह की तबाहकारियों पर गौर करते हैं, वो तौबा कर लेते हैं और यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। लेकिन जो गुनाह करते जाते हैं और बिल्कुल लापरवाह हैं, वो अपने इंजाम पर आज गौर कर लें और याद रखें, एक छोटा सा गुनाह भी जहन्नुम में ले जाने के लिए काफ़ी है। लोग छोटे छोटे गुनाहों के लिए बिल्कुल लापरवाह हैं, वो परवाह नहीं करते, लेकिन याद रखें इसका भी इंजाम बुरा है और इसकी भी अदालत होगी। इसलिए आज आपके पास वक्त है, और आज मेरे इस मैसेज को जो भी भाई बहन सुनते हैं, इस पर गौर करें, दूसरों को भी बताएं, और खुदा के कलाम का मुताला करें और अपनी ज़िंदगी खुदा को दें। अच्छे काम करना शुरू करें और दूसरों पर जुल्म करना बंद करें, और अपने दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत लाएं, मोहब्बत पैदा करें, और आखिरी अदालत और आखिरी इंजाम के बारे में गौर करें। और फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक छोटा सा गुनाह भी हमें तबाह बर्बाद कर सकता है, और आग की झील जो है, उसकी आग जो है वो कभी भी बुझती नहीं है। इसलिए ज़रूर सोचें और ज़रूर तवज्जो करें। खुदावन आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, और फजल टीवी के नाजरीन को भी खुदा बरकत दे, और फजल टीवी को खुदावंद और ज़्यादा बढ़ाए और बरकत दे। देखते रहें फजल टीवी। आमीन।